سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے 11 سال 2014 میں آج ہی کے روز سفاق دہشت گردوں نے اے پی ایس پشاور میں معصوم طلبہ پر حملہ کر کے 132 بچوں، خواتین اساتذہ اور سٹاف سمیت 147 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ اے پی ایس کا درد تمام والدین اور پوری قوم کا درد ہے۔ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاک سرزمین کو محفوظ بنانے کے لیے سب کو مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج بھی پاکستان کی مسلح افواج، پولیس اور عوام دہشت گردوں کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے بات چیت ممکن نہیں، امن کے دشمنوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قوم اے پی ایس کے معصوم بچوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے۔ تجدید عہد کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت۔ سڈنی بیچ حملے میں ملوث باپ بیٹا بھارتی پاسپورٹ پر گزشتہ ماہ فلپائن آئے تھے۔ ساجد اور نوید اکرم 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے۔ باپ بیٹا سڈنی سے بطور بھارتی شہری فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس روانہ ہوئے۔ فلپائن امیگریشن حکام۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم نے فلپائن میں فوجی طرز کی تربیت حاصل کی تھی۔ آسٹریلوی پولیس۔ آسٹریلوی وزیراعظم کی سڈنی حملے کے دوران حملہ آور کو پکڑنے والے ہیرو احمد الاحمد کی ہسپتال میں عیادت۔ آسٹریلیا دہشت گردی کے ذریعے تقسیم نہیں ہوگا۔ احمد الاحمد آسٹریلیا کے اتحاد اور حوصلے کی علامت ہیں۔ آپ پورے آسٹریلیا کے ہیرو ہیں۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور سے بندوق چھینی اور بے شمار زندگیاں بچائیں۔ آسٹریلوی وزیراعظم اینتھنی البنیز کی احمد الاحمد سے بات چیت۔ Background's Indian and Italian. Like, I think he's, so. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be looked into. بھارت کی ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر سے آسٹریلیا تک پھیل گئی۔ سڈنی دہشت گردی کا مرکزی ملزم نوید بھارتی نکلا۔ والد کا تعلق بھارت اور والدہ اطالوی ہیں۔ بی بی سی نے بھی ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم نے فلپائن میں فوجی طرز کی تربیت حاصل کی۔ سڈنی واقعے پر بھارتیوں کی پریشانی اور جھوٹ سب پر عیاں ہو گیا۔ واضح ہو گیا سڈنی واقعے پر بھارتی کیوں چیخ پکار کر رہے تھے۔ بی جے پی کے دور حکومت نے مسلم خواتین حکمرانوں کے ہاتھوں ہراسانی کا شکار۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک تقریب میں ڈاکٹر مسلم خاتون کا حجاب زبردستی اتار دیا۔ خاتون ڈاکٹر اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے آئی تھیں۔ مسلمان خاتون کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جب ریاست کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھا شخص ایسی حرکت کر رہا ہے تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ ریاست میں خواتین کتنی محفوظ ہوں گی۔ نتیش کمار فوری مستعفی ہوں، کانگریس کا مطالبہ۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بلوچستان میں شرنگیز اور منظم سازش کا ایک مرتبہ پھر پردہ چاک۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث پیج 3 نیوز تھائی کے نام سے چلنے والا ایکس اکاؤنٹ بھارت سے کنٹرول ہونے کا انکشاف۔ بھارتی اکاؤنٹ سے مسلسل میر یار بلوچ کے نام پر من گھڑت دعووں، تاریخی تحریف اور بھارتی ایجنڈے کی تشہیر جاری۔ تھائی سماجی ایپ ایکس کے مطابق اکاؤنٹ بھارت سے تھائی لینڈ وی پی این کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم اور شرپسند عناصر کی سرپرستی نے بھارتی مذموم عزائم کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا۔ بھارتی دفاعی برتری کا خود ساختہ بیانیے کا پردہ چاک۔ پاکستان اور بھارت کی 52 منٹ فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، میگ 29، SU-30 اور ہیرون ڈرون شامل۔ ادھم پور میں بھارتی دفاعی نظام S-400 کو ناکارہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی سائبر یونٹس نے بھارت کے تقریباً 96% سوشل نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل نظام کو مفلوج کیا۔ برطانیہ کے دفاعی جریدے کی ایرو میگزین کی تحقیقاتی رپورٹ۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,71,792 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। SIFC की काबिशों से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में जबरदस्त कामयाबी, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदे में तोसी, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त, आइंदा 2 बरस में दो तरफा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर, कस्टम्स हम आहंगी, डिजिटल कनेक्टिविटी और रियल टाइम डाटा एक्सचेंज पर खुसूसी तवज्जो, तरजीही तिजारती मुआहदा तोसी से पाकिस्तान पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद मजीद मुस्तहकम होगा। जिसकी मेहनत उसी की छत, जिसकी जद्दोजहद उसी का हक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के 720 मेहनतकश खानदानों को माहाना किराए और बेदखली की अजियत से निकाल दिया। मेहनतकश खानदानों को उनके अपने घरों में बसाने का बंदोबस्त। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनदी वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरंदाजी कर दी। मरियम नवाज ने नदीम ताहिर नामी सनदी वर्कर को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। बेवाओं और स्पेशल अफराद को कुरंदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म। अच्छा इकदाम है, डीजल की कीमत में कमी की गई है तो आवाम को रिलीज मिलेगा और किराए में फ़ायदा होगा। डीजल की कमी जो हुई है बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का, बहुत अच्छा गवर्नमेंट का नया अमल है कि इन्होंने जो कीमतें कम करी हैं, इससे लोग बड़े खुश हुए हैं कि यार कम से कम कीमतें तो कम हो रही हैं। डीजल की कीमत कम होने से ये है कि मईशत को बड़ा फ़ायदा होगा। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, ये हैं, इनको कम से कम अच्छा खासा रेफर मिल जाएगा। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरी मरतबा नुमाया कमी का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए की कमी, नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार, नई कीमतों का इतलाक हो गया। सेहत के मजबूत निज़ाम का मजबूत मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार है। किसी भी मुल्क की तरक्की या तबाही में सेहत बुनियादी उनसर है। सेहतमंद अफराद ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। सेहत का आलमी निज़ाम कोरोना वबा के बाद अब तक बहाली के अमल से गुजर रहा है। इनफरादी फलाह और बहबूद कौमी बका से जुड़ी है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सेहत और आबादी और UHC कंट्री प्लेटफॉर्म के मुश्तरका इजलास से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ के खुदइरादियत के हक़ में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 164 जबकि 8 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद फ़लस्तीनी अवाम की बुनियादी और नाकाबिले तनसीख हक़ के खुदइरादियत की हिमायत करती है। करारदाद का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक फ़लस्तीन के मसले के मुनसिफाना हल पर जोर। यूक्रेन और रूस की जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के बहुत करीब हैं। बर्लिन में अमरीकी वफ़द की यूक्रेन के सदर, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और नेटो के रहनुमाओं के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी वफ़द के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर नतीजा खेज रहा। सिक्योरिटी ज़मानतों के बारे में बाज़ मामलात अब भी हल तलब है। सदर ज़ेलेंस्की यूरोपीय रहनुमाओं की यूक्रेन में मल्टी नेशनल फोर्स के क़याम की तजवीज़। दुनिया भर में सुपर फ्लू के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। सुपर फ्लू की अलामत में तेज बुखार, सर दर्द, शदीद खांसी, गले में खराश, जिस्म और पट्टों में शदीद दर्द, गैर मामूली थकन और कमजोरी शामिल। सुपर फ्लू आम फ्लू नहीं, ज्यादा खतरनाक और तेजी से मुंतकिल होने वाला वायरस है। तिब्बी माहिरीन अफगानिस्तान में साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम पानी और बुनियादी सहूलियात के लिए तरस गए। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद साफ पीने के पानी से महरूम। यूरोपीय यूनियन ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगान तालिबान खित्ते में दहशत गर्दी फैलाने में मसरूफ। अफगान तालिबान फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान की सहूलतकारी में मसरूफ अमल।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की बासाख्ता मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। PSL रोड शोज की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी है। कोशिश है कि PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। दुबई में अंडर 19 एशिया कप आज 2 मैचेस। इवेंट के 9वें मैच में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम्स मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स AG पर बराह रास्त। 10वें मैच में भारत की मलेशिया के खिलाफ बैटिंग जारी। बिग बैश लीग तीसरे मैच में आज होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर्स होबार्ट में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला दिन 1:15 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तान के शादाब खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा हैं। और अतालवी फुटबॉल लीग सीरिया रोमा की कोमो को 1 गोल से शिकस्त। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल वेस्ले ने खेल के 60वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर रोमा की टीम 30 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर। इंटर की टीम 33 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सानहा APS पेशावर के 11 साल बाद जख्म आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये एक कौमी सालिया था जिसने हर पाकिस्तानी के दिल को जख्मी किया। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई गई। 16 दिसंबर 2014 को 6 मुसल्लह दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमलावर हुए। जदीद असले से लैस दुश्मनों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। इंसानियत के लफ्ज़ से नाशना अफराद ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ताहिरा काजी की फर्ज शनासी बरसों याद रखी जाएगी। बहादुर खातून ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दहशतगर्दों और बच्चों के बीच दीवार बनकर खड़ी रहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने APS हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का इंतकामी रद्द-ए-अमल करार दिया। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और असलहा और बारूद भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। दिलों को दहला देने वाले इस सानहे ने हर आंख अश्क बार कर दी और पूरी कौम को बिला किसी मजहबी और सियासी तफरीक यकजा कर दिया। खैबर से कराची तक पूरे पाकिस्तान में इन मासूमों को बेदर्दी से शहीद करने पर सोगवार कर दिया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके इल्म की शमा बुझाना चाही और मुस्तकबिल के मेहमानों को निशाना बनाया, मगर कौम के हौसले पस्त न कर सके। मुल्क भर में हर मकतबा फ़िक्र के अफराद की जानिब से इस लादीन और जुल्म व बर्बरियत का प्रचार करने वाली दहशतगर्दाना और शरपसंदाना सोच को रद्द कर दिया गया। सानहा APS दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी और मुतफ़क्का लाहे अमल नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में मुरतब करने का बायस भी बना। पूरी दुनिया की जानिब से इस दिलसोज वाक़े की मजम्मत की गई और इन दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा देने का पुरजोर मुतालबा भी किया गया। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल बीत गए, मगर कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और माली मुआवनीन से कोई नरमी नहीं होगी। APS के मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। APS के मुतासरा खानदानों के हौसले को सलाम पेश करते हैं। APS शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि हर दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा। अमन के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। APS शोहदा की याद हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को बेनकाब करता रहेगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दी के सहूलतकारों को तनबीह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की हर शक्ल को शिकस्त देंगे, चाहे वो किसी भी सियासी, नजरियाती या जाली मजहबी लिबादे में खुद को छुपाने की कोशिश करें। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और मासूम शोहदा खुसूसन सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि दहशत गर्दी के खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि APS के मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले की कुर्बानियाँ कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे में ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। उन्होंने कहा कि रियासत, सिक्योरिटी इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जिदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे की बरसी के मौके पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा है कि आज हम APS पेशावर के अलमनाक सानहे के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी कुर्बानी कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा की कुर्बानी हमें दहशत गर्दी के खिलाफ इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुसलसल एहसास दिलाती है। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और साबित कदम है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान बहरीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और अखुवत पर कायम है। पाकिस्तान को बहरीन के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात पर फख्र है। बहरीन के कौमी दिन पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन की हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। सदर ममलकत ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन और आलमी फोरम्स पर करीबी हमाहंगी काबिल कदर है। अवामी रवाबित बढ़ाकर ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। सदर ममलकत ने कहा कि बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी दोनों ममालिक के दरमियान अहम पुल है। पाकिस्तानी कम्युनिटी बहरीन की मईशत और सकाफत में मौसर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान बहरीन के साथ शराकतदारी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का है कहना कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़दार पर मबनी है। काज़ाकिस्तान का सफ़र इस्तकामत और मुसलसल तरक्की की अलामत है। काज़ाकिस्तान के यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई रवाबित में बाहमी ताउन मजबूत हो रहा है। CPEC के जरिए काज़ाकिस्तान के साथ ताउन के नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। काज़ाकिस्तान की क़यादत और अवाम को 34वें यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। 1991 का कानून आज़ादी काज़ाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तारीखी संगमील है। सदर ममलिकत का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में काज़ाकिस्तान की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए काज़ाकिस्तान से शराकतदारी मज़ीद गहरी करेंगे। और फिलिपाइन ने तस्दीक की है कि सिडनी बीच के हमलावरों साजिद अकरम और नवीद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया था। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान ने कहा कि 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम भारतीय शहरियों के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। फिलिपाइन की वजारत दिफा के तर्जुमान आर्सिनियो एंडोलोंग ने बताया कि फिलिपाइन की पुलिस सिडनी के बोंडाई साहिल पर होने वाली फायरिंग से कबल दोनों हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे से मुतालिक तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस पहले ही कह चुकी है कि दोनों हमलावर गुज़िश्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने सिडनी हमले के दौरान हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में इयादत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दहशत गर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद से बातचीत करते हुए कहा कि आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाएं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद से कहा कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटनी अल्बनीज़ ने अहमद अल अहमद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहमद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे आदमी हैं जो आजिज़ी से भरे हुए हैं। दूसरी जानिब अहमद अल अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैर खाहों का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम सिडनी बीच हमलावरों के बारे में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी नशियाती इदारे ABC की रिपोर्ट के मुताबिक 6 बरस कबल ऑस्ट्रेलिया की मकामी इंटेलिजेंस एजेंसी ASIO ने
बुंडाए साहिल पर हमला आवर नवीद अकरम की सिडनी में नाम नहाद दौलत इस्लामिया के एक सेल से ताल्लुक का जायजा लिया था। ABC के मुताबिक रियासत और वफाकी एजेंसीज पर मुश्तमिल एक मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी टीम को मालूम हुआ था कि हमलावर ने नाम नहाद दौलत इस्लामिया से अपनी वफादारी जाहिर की थी। ABC के मुताबिक सीनियर एहलकारों ने कहा है कि बुंडाए साहिल पर हमलावर की कार से नाम नहाद दौलत इस्लामिया के 2 परचम भी मिले हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक परचम कार के बोनेट पर है। JCTT के एहलकार ने ABC को बताया कि ASIO ने 6 बरस कबल नाम नहाद दौलत इस्लामिया के एक हमले को नाकाम बनाया था और इसी दौरान उन्होंने नवीद अकरम में दिलचस्पी ली थी। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने तस्दीक की है कि ASIO ने अक्टूबर 2019 के दौरान 6 माह तक नवीद अकरम के बारे में तहकीकात की थी, मगर उस वक्त उन्हें खतरा नहीं समझा गया। एक सिक्योरिटी एहलकार ने ABC को बताया कि नवीद अकरम मतारी नामी शख्स से करीबी ताल्लुक रखते थे, जो कि नाम नहाद दौलत इस्लामिया के खुद साख्ता कमांडर थे और हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उन्हें 7 साल कैद की सजा हुई थी। ASIO के डायरेक्टर जनरल माइक बर्गनर ने कहा है कि 2 हमलावरों में से एक के बारे में एजेंसी को पहले से ही मालूम था। कुछ बात कर लेंगे यहाँ पर PSX की ऊंची उड़ान की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,71,792 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से हमने राब्ता किया है कराची में अपने नुमाइंदे सुहेल जमाली से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं स्टॉक के हवाले से, आगाह कीजिएगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सुबह से ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है और 100 इंडेक्स 1125 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,71,866 तक पहुंचा। जिन सौदों में तेजी देखी जा रही है उनमें सीमेंट है, कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑटोमोबाइल एसेसरीज हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, मुस्तकबिल के सौदे हैं और कमर्शियल बैंक्स हैं। स्टॉक मार्केट के माहिरीन कहते हैं कि सरमायाकारी में तेजी की वजह IMF की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की वसूली, सर्कुलर डेट में कमी, टैक्स इस्लाहात, हुकूमत की जानिब से सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ अफराद ज़र और महंगाई में कमी और बरामदाद और तरसीलात ज़र में इजाफा है। बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली, आप तफसीलात से आगाह करे थे। SIFC की काबिशों की बदौलत पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में ज़बरदस्त कामयाबी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तरजीही तिजारती मुआहदे की तौसीक़ पर इत्तेफाक और 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान अगले 2 साल में 2 तरफा तिजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की क़यादत ने बाहमी मुआशी ताउन और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने के अज़्म का अदा किया है। पाक उज़्बेक तिजारत में सहूलत के लिए कस्टम हमआहंगी, डिजिटल कनेक्टिविटी और रियल टाइम डाटा एक्सचेंज पर जोर दिया गया है। उज़्बेकिस्तान की जानिब से टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा और सर्जिकल आलात को मुश्तरका मनसूबों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तरजीही शोबे करार दिया गया है। रोजगार और सरमायाकारी के मौके के साथ पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की की नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। तरजीही तिजारती मुआहिदात तौसीक़ से पाकिस्तान में तिजारती हजम बढ़ेगा और आलमी सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी है। वज़ीर आला ने कामयाब वर्कर्स को मुबारकबाद दी और बेवा और खुसूसी अफराद को कुरानंदाजी का बगैर फ्लैट्स देने की हिदायत की। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा 18 माह में सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स मुकम्मल किए जाएंगे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने बताया कि थरकोल फील्ड ताचौड़ तक और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाना सिंध और वफाक का मुश्तरका मनसूबा है। मनसूबे की मजमूई लागत 90 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें खरीदने की कीमत में 96 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। काबीना के इजलास में 10वें आदम कॉन्फ्रेंस और अदब फेस्टिवल साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए भी रकम की मंजूरी दी गई। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए की बड़ी कमी कर दी गई है। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसा फी लीटर पर बरकरार है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी करने पर जनूबी पंजाब के अवाम ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि कीमतें कम करने का फ़ायदा बराह रास्त अवाम को होगा। किरायों और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी आएगी। पाकिस्तान मशहूर हाँ कि उन्होंने 14 रुपए डीजल की कीमत घट की है। इनकी वजह तो काश्तकारों को जनाब बड़ा फ़ायदा थी गए ताकि फसलों की कहते काश कम थी वैसी, बुआई आसानी पैदा थी वैसी
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਥੀ ਵਸਨ। ਕਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਰ ਔਰ 14 रुपये डीजल सस्ता से सब कोई फायदा थी है। डीजल का रेट घट थी है ना, गरीब आवाम को भी बहुत फायदा है, सानू भी बहुत फायदा है, ठीक है ना। 14 रुपये जो डीजल कम थी है, लेकिन इहदे नाल काफ़ी लोगों को फ़र्क पै गई है। ये डीजल सस्ता हुआ है 14 रुपये, हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करना है बड़ा, जरा 14 रुपये डीजल सस्ता कितने सबको बड़ा फायदा दे गए। 14 रुपये लीटर जो कम हुआ है, इससे काफ़ी फ़र्क आएगा इंशाल्लाह, और किराए में कमी आएगी, महंगाई में भी कमी आएगी। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर तक कमी का ऐलान किया है। फैसलाबाद के शहरियों ने इस इकदाम को महंगाई के खिलाफ एक मुस्बत कदम करार दिया है। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। हुकूमत की तरफ से डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी से मुख्तलिफ तबकों को रिलीफ फराहम होगा। डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ज़राई शोबा, अशिया खुर्दोनोश की तरसील सस्ती होने से महंगाई में कमी और आम सारिफ को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने जो डीजल की कीमतें कम की हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारा माल ट्रकों में आता है और डीजल की कीमतों से किराए में बड़ी कमी होगी। डीजल की कीमतें जो कम हुई हैं, इसका आवाम को बराह रास्त इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट में डीजल ही डलता है, ज़ाहिर बात है, तो डीजल की कीमतें कम होंगी तो इंशाल्लाह इसका जो सीधा फ़ायदा है वो आवाम को होगा। डीजल की कीमतें कम करना हुकूमत का बहुत बड़ा अहसन इक़दाम है और इससे जो है गरीबों को बहुत रिलीफ मिलेगा। डीजल के रेट में कमी होने की वजह से आवाम को फ़ायदा होता है, हर चीज़ का किरायों में महंगाई में कमी आ जाती है। गड्डियां दी भला हो जाएगा जी, डीजल उन्होंने घटाता है। डीजल सस्ता होने से मजमूई मुआशी सरगर्मियों पर यकीनन मुस्बत असर पड़ेगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। भारत में अक़लियतों के हुकूक एक बार फिर सरकारी सतह पर मजरूह होने लगे हैं, जिस पर भारतीय हुक्मरानों की ज़हनी हालत पर सवालात उठने लगे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दस्ते रास्त और भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब ज़बरदस्ती उतार दिया गया, जिस पर सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए वज़ीर आला के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा किया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की ज़हनी हालत पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस इक़दाम को नाकाबिले कबूल करार देते हुए माफ़ी का मुतालबा किया है, जबकि नाकिदीन का कहना है कि ऐसे वाक़यात भारत में मुस्लिम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरा सवालिया निशान है। बरतानिया के दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट की फ़िज़ाई जंग में भारतीय फ़िज़ाइया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हेरोइन ड्रोन शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस JF-17C ब्लॉक 3 की कार्रवाइयाँ और साइबर यूनिट्स ने भारतीय फ़िज़ाई और दिफाई निज़ाम को मफलूज कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी तैयारों की तबाही को तस्लीम किया है। पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म साजिश और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकिशाफ हुआ, जो जाली शनाख्त के जरिए मीर जार बलोच के नाम पर पाकिस्तान मुखालिफ पैगामात फैला रहा था। ये अकाउंट तारीखी तहरीफ, भारतीय एजेंडे और दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए बलोच शनाख्त का गलत इस्तेमाल कर रहा है। थाई समाजी ऐप एक्स के मुताबिक अकाउंट भारत से थाईलैंड VPN के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम और बदअमनी के शवाहिद आलमी सतह पर भारतीय मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर रहे हैं। बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल के भारतीय सरपरस्ती में मफरूर शेख हसीना वाजिद के मंसूबे की मालूमात सामने आई हैं। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हसीना वाजिद भारतीय हिमायत से इंतखाबात को मुतासर करने और सियासी कारकुनों को हिरासत करने में मुलव्विस है। मारूफ आलमी मीडिया अनादोलो एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि सियासी कारकुन उस्मान हादी पर कातलाना हमला हुआ, जबकि भारत में मुक़ीम अवामी लीग के शिद्दत पसंद इंतखाबात को सबूताज करने के लिए सरगर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हसीना वाजिद फ़रार होने से कबल अवामी तहरीक के 1400 अफराद को कत्ल कर चुकी हैं। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने अवाम और बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि इंतखाबात के अमल को महफूज और शफ़ाफ बनाया जाए। 1971 की जंग में भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बाहिनी ने मशरकी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का बेरहमी से कत्लेआम किया। 1971 की जंग के गाजी पाक फौज के मेजर मुमताज़ हुसैन शाह रिटायर्ड ने जंग की आप बीती सुनाते हुए बताया
کہ میں اکتوبر 1970 سے لے کر اگست 1971 تک سلہٹ سیکٹر میں تعینات رہا. جو بھی شخص متحدہ پاکستان کے حق میں تھا وہ مکتی باہنی کا دشمن تھا. بھارت نے مکتی باہنیوں کو تربیت دے کر جنگ کے لیے استعمال کیا. دریائے کرنافولی کے کنارے ایک ہال تھا جو لاشوں سے بھرا ہوا تھا. ہم نے ان لاشوں کو ریکور کیا. مکتی باہنی نے سینکڑوں خواتین کی عصمت دری بھی کی. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، رحیم یار خان میں تیسرے دن بھی شدید دھند چھائی ہوئی ہے. حد نگاہ کم ہونے سے روزمرہ کے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں اور حادثات کے خطرے کی وجہ سے موٹر وے M5 بند کر دی گئی ہے. اس وقت ہمارے نمائندہ اشفاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، رحیم یار خان میں آج تیسرے روز بھی دھند کا راج برقرار ہے اور حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کے روزمرہ کے معمولات بری طرح متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں. دھند کی لپیٹ میں آنے والے رحیم یار خان کے سب سے زیادہ علاقے جو ہے وہ ظاہر پیر، اقبال آباد، چاچڑا اور لیاقت پور کی دریائی پٹی ہے اور اس دریائی پٹی کے قریب موٹر وے M5 ہے جسے ظاہر پیر سے روڑی تک بند کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح دھند کی وجہ سے قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. موٹر وے پولیس کی جانب سے اس حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. سلو موونگ گاڑیوں کی روڈ پر موجودگی نمایاں رکھنے کے لیے ریفلیکٹنگ سٹیکرز لگانے کے ساتھ ٹال پلازا پر مووی پوائنٹس پر دھند بارے الیکٹرک بورڈز لگائے گئے ہیں اور شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسی طرح شہر میں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ہدایت نامہ بھی جاری کیا گیا ہے. ریسکیو 1122 کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر کسی بھی حادثات کی صورت میں بروقت پہنچنے کے لیے پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں. جی، پاک پتن اور اس کے مضافاتی علاقوں میں شدید دھند نے شہریوں کے روزمرہ زندگی کے معمولات کو متاثر کیا ہے. صبح اور شام کے اوقات میں حد نگاہ انتہائی کم رہ جاتی ہے. شدید دھند کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی رفتار سست ہو گئی ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. آج کے دن پاک پتن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 218 ریکارڈ کیا گیا ہے جو فضائی آلودگی میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے. ماہرین کے مطابق یہ صورتحال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. شہریوں خصوصاً بچوں، بزرگوں اور سانس کے مریضوں کو حکومتی SOPs پر عمل کرنے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور ڈرائیونگ کے دوران فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند اور سموگ چھائے رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا. پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی اضلاع میں درمیانی سے شدید دھند اور سموگ چھائی رہی اور ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل. اور ناظرین، آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ آلودگی سے متاثرہ 3 بڑے شہروں کی فہرست آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر. لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود ہے جس کا AQI 284 ریکارڈ کیا گیا. بھارتی دارالحکومت دلی 283 کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے اور اس فہرست میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا تیسرا نمبر ہے جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 202 ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا. اور یہاں پر خبر آپ کو دیتے ہیں افغانستان سے. افغانستان میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا جس سے شہری غاصب طالبان رجیم سے تنگ آ گئے ہیں. افغان نشریاتی ادارے خامہ پریس کے مطابق یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد صاف پینے کے پانی سے محروم ہیں، جبکہ آلودہ پانی پینے سے بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے. خامہ پریس کے مطابق یونیسیف کی بھی رپورٹ آ چکی ہے کہ افغانستان میں 80% سے زیادہ آبادی آلودہ پانی پینے پر منحصر ہے. خراب انفراسٹرکچر اور طالبان رجیم کی سیاسی بد انتظامیوں نے افغانستان کی صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے. پانی کے بحران نے عوامی صحت، سماجی استحکام اور غذائی سلامتی کو شدید خطرے میں دھکیل دیا ہے.
امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کرپٹو کرنسی کے اپنانے اور اس حوالے سے قواعد وضع کیے جانے کے ضمن میں بڑے پیمانے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدارتی کونسل برائے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹرک ویٹ سے اہم ملاقات میں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں اور کرپٹو کرنسی کے شعبے میں امریکہ کے ساتھ باہمی طور پر سودمند شراکت داری کا خواہاں ہے۔ نئی معیشت، ڈیجیٹل فائنانس اور بلاک چین انقلاب کو منظم کرنے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا قائدانہ کردار لائق تحسین ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کھلے مباحثے کے دوران پاکستان نے بھارت کے الزامات مسترد کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کے مطابق ہی ممکن ہے۔ کونسلر گل کیسر سروانی نے کہا کہ بھارت کی دہشت گردی سے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں جبکہ پاکستان کے پاس سرحد پار دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی دعووں کو بھی حقائق کے منافی قرار دیا۔ نیو یارک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 164 ممالک نے ووٹ دیا جبکہ صرف 8 ممالک نے اس کی مخالفت کی۔ 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ قرارداد فلسطینی عوام کے بنیادی اور ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل پر زور دیتی ہے۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کے وزیر مملکت اور اوورسیز پاکستانی اون چودھری اور پارلیمانی سیکریٹری چودھری احسان الحق باجوہ کے اعزاز میں پروقار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی عرب میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکت سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت اون چودھری اور پارلیمانی سیکریٹری چودھری احسان الحق باجوہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل، ان کے حل اور حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور اوورسیز کمیونٹی کے لیے مزید عملی اقدامات کی امید ظاہر کی۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد افضال بھٹی نے کہا ہے کہ جن افراد کے ویزے پروٹیکٹر ہو چکے ہیں انہیں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے آف لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ اور سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق بیرون ملک انتقال کرنے والے پاکستانیوں کے لواحقین کے لیے معاوضہ بڑھا کر 10 لاکھ روپے جبکہ زخمی افراد کے لیے 6 لاکھ روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئی ہیں اور مڈل ایسٹ سمیت دیگر ممالک جانے والوں کے لیے اسکل پروگرامز بھی شروع کیے گئے ہیں۔ جو پروٹیکٹر لگوا کے باہر جاب کے لیے جا رہا ہوگا اور اس میں مڈل ایسٹ زیادہ کور ہوتا ہے، ان کو ان کے ڈاکومنٹس چیک کر کے ان کو نہیں آف لوڈ کیا جائے گا، دیٹس فور سرٹن۔ اور اگر اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے آپ او پی ایف کے نوٹس میں لے کر آئیں، ہم اس کو فوری طور پہ ایڈریس کریں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں ویزا کہیں کا لگوا کے جاتے ہیں، وزٹ ویزا، اور پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو اسے ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کلیکٹیولی اس پہ ایفرٹ کرنی پڑے گی اور گورنمنٹ اس پہ فوکسڈ ہے۔ جی گلف میں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ موسٹلی لیبر طبقہ ہے اور ان تک جو سوشل میڈیا یا دوسری جو ہمارے میڈیا ہیں ان تک ان کی اپروچ نہیں ہوتی۔ او پی ایف کا ڈیلیگیشن ایم ڈی افضال بھٹی صاحب ماشاءاللہ خود اتنا اچھا بریف کر کے گئے ہیں اور میرے خیال میں اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا اور بڑی ساری فیسلٹیز ہیں اور لوگ اس سے اویل ہوں گے اور لوگوں کو سہولیات ملیں گی۔ بخارا میں تیار ہونے والے سلک قالین اپنی نفاست، اعلیٰ کاریگری اور دلکش ڈیزائن کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ ہنرمند خواتین ہاتھ سے بنے قالین تیار کر کے نہ صرف قدیم فن کو زندہ رکھ رہی ہیں بلکہ ملکی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بخارا سے ہماری نمائندہ فرحانہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بخارا کے مختلف علاقوں میں قائم قالین بنانے کے مراکز میں خواتین بڑی محنت اور مہارت کے ساتھ ریشمی دھاگوں کو خوبصورت نقش و نگار میں ڈھالتی نظر آتی ہیں۔ ان قالینوں کی تیاری میں صبر، یکسوئی اور برسوں کا تجربہ درکار ہوتا ہے کیونکہ ایک قالین کی تیاری میں کئی ہفتے اور بعض اوقات کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ What you see here, they make it Bukhara carpet, like very difficult design, which calling this kind of the
you can see from this design, they see from details, they can count from here. So for here, for 1 square centimeter, the girls, they're doing 325 knots for 1 square centimeter. So for 1 meter, 1.5 by 1 meter, the one girl working like 6-7 months for this kind of the carpet. All natural dye from the vegetable dye, 100% silk. The base is silk made on silk. सिल्क के बने हुए ये कालीन बुखारा की तारीखी शनाख्त समझे जाते हैं, जिनके डिजाइन में इस्लामी फन तामीर, कदीम मदरसों, मसाजिद और वस्त एशियाई सकाफत की झलक नुमायां होती है। कुदरती रंगों से तैयार किए गए ये कालीन अपनी मजबूती और दिलकशी के बाइस आलमी मंडी में खास मकाम रखते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे जाते हैं, जिससे न सिर्फ मकामी हुनरमंदों की हौसला अफजाई हो रही है, बल्कि उज़्बेकिस्तान की सकाफती पहचान भी आलमी सतह पर उजागर हो रही है। इस सनत से वाबस्ता ये खवातीन अपने खानदानों की कफालत के साथ साथ मुआशी खुद मुख्तारी की मंजिलें तय कर रही हैं। ये हुनरमंद खवातीन साबित कर रही हैं कि मेहनत, लगन और रिवायत से जुड़ा हुनर किसी भी कौम की शनाख्त बन सकता है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुखारा, उज़्बेकिस्तान। पुर्तगाल में होप ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के ज़रिए एहतमाम एक भरपूर ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पुर्तगाल समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पुर्तगाल में होप ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी के ज़रिए एहतमाम एक भरपूर ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पुर्तगाल समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल, उनके हल और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाही फराहम करना था। कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा शाह थे, जबकि सफीर पाकिस्तान बराए पुर्तगाल आयशा फारूकी ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद कमर रजा शाह ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हुकूमत पाकिस्तान इनके मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। सफीर पाकिस्तान आयशा फारूकी ने अपने खिताब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को सराहते हुए कहा कि बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी और मेजबान ममालिक के दरमियान एक मजबूत पुल की हैसियत रखते हैं। कन्वेंशन के अख्ताम पर शुरका ने इस इकदाम को खुशआइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस नौइयत की तकरीबात और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद मुनज़्ज़म और बाखबर बनाने में मददगार साबित होगी। फुरकान अली शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लिस्बन, पुर्तगाल। सोस्त गुजाल में बुजुर्ग शहरियों के एजाज में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुआशरे के लिए उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसी हवाले से सोस्त से रिपोर्ट कर रही हैं हमारी नुमाइंदा शाहीन सफ्तर। जिला मुंजर के बालाई इलाके खैबर गुजार से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सिटीजन के एजाज में सोस्त में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने बुजुर्गान की समाजी खिदमत को सराहते हुए इलाके की तामीर तरक्की के लिए इनके ग्राम कदर खिदमत को सुनहरे अल्फाज में याद किया। लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है कि हमें इस मकाम तक पहुंचाने वाली हमारी ये जनरेशन है, ताकि इन जनरेशन को उस चीज़ का हम एक पे बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझिए एक छोटा सा हमारी तरफ से ये है एक तोहफा। अपने सीनियर्स को यहाँ लेके आए हैं तो वो भी यहाँ पे आके बड़ी बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनको दिखाएंगे, बहुत सारे नई चीज़ें उनके लिए है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी यहाँ देख कर जाएंगे और कुछ नहीं तो मतलब ये खुश होंगे। सोस्तरीना होटल की जानिब से मुनक़िदा इस तकरीब में सीनियर सिटीजन को बाहमी मेल जोल और अपनी यादें ताज़ा करने का शानदार मौका फराहम किया गया। सीनियर सिटीजन को सोस्तरीना होटल में 100 साल कदीम तारीखी घर भी दिखाकर उनकी पुरानी यादें भी ताज़ा करा दी गयी। हम सबको चाहिए कि अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। शाहीन सफ्तर, PTV न्यूज़। बैनुल-अक़वामी सेहत व आबादी और UHC कंट्री प्लेटफॉर्म के इश्तराक से मुश्तरका इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि सेहत का शोबा किसी भी मुआशरे में बुनियादी अहमियत रखता है और मजबूत सेहत का निज़ाम ही एक मजबूत मुआशरे की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद अफराद ही सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद बनते हैं।
मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी भरपूर अंदाज में जारी है। नेशनल EOC के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। मुहिम के पहले रोज 1,33,00,000 से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत और मुसलसल इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला मियांवाली में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। CEO हेल्थ मियांवाली डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान के मुताबिक पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान ने ईसा खेल, तरग, कमरमशानी, कोट चांदना, रोखड़ी और पक्की शामरदान में पोलियो ट्रांजिट और घर घर टीमों का मुआयना किया और कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि 5 साल से कम उम्र कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम नहीं रहेगा। CEO हेल्थ ने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो टीम से मुकम्मल ताउन करे ताकि इस मूजी मरज़ का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब चौधरी जाहिद अख्तर जमान ने कमिश्नर गुजरावाला के हमरा मंडी भावतीन का दौरा किया और शहर के बस में नई तामीरशुदा फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह किया। उन्होंने सदर बाजार और जनरल बस स्टैंड का मुआयना किया और शहर की खूबसूरती के लिए जारी तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने शहर से बाहर मुंतकिल की जाने वाली सब्जी और गल्ला मंडी का भी दौरा किया, जहां पर उन्हें तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उनका कहना था कि शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गिलगित बल्तिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर अहले सुन्नत काजी निसार अहमद पर 5 अक्टूबर 2025 को होने वाले कातिलाना हमले से मुतालिक अहम पेशरफ्त से आगाह किया। IG के मुताबिक हमले में मुलविस दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया है और 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी किया। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलविस दीगर मुलजिमान की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। IG ने वाज़ेह किया कि गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने ज़राई तरक्की में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। खाद की मुसलसल फराहमी, कीमतों में इस्तेहकाम, ब्लैक मार्केट का खात्मा, जदीद ज़राई मशीनरी की दस्तयाबी और ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़ियादत में फरवरी 2024 से अब तक यूरिया और DAP की कीमतों में ना इजाफा हुआ और ना ही किल्लत सामने आई। बर वक्त वीट पॉलिसी और मुसलसल मॉनिटरिंग के नतीजे में पंजाब ने 16.5 मिलियन एकड़ पर गंदम की रिकॉर्ड बुवाई मुकम्मल कर ली है। किसान कार्ड, ज़राई कर्जे और जदीद मशीनरी के जरिए किसानों को बराह रास्त सहूलत फराहम की गई। पंजाब में 8 लाख किसान कार्ड जारी, 250 अरब रुपए के कर्जे दिए गए, जबकि कर्ज वापसी 96% रिकॉर्ड रही। बीज की फरोख्त में 27% और यूरिया की फरोख्त में 26% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर आला ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये जो एक ज़राई तालीम है उसकी तकमील में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को जो है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का भी मौका मिल रहा है और सेकेंडली ये है कि कल जो जितनी भी फील्ड्स के अंदर जो है इनोवेशंस हैं उनको भी ये लोग देखेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर्स और हाई टेक मशीनरी प्रोग्राम के तहत हजारों जदीद ज़राई आलात किसानों तक पहुँचाए गए। ज़राई तहकीक, टेक्नोलॉजी और बीज के शोबे में चीन के साथ ताउन को भी फरोग दिया जा रहा है। जदीद ज़राई पॉलिसी, अमली इक़दामात और किसान दोस्त ज़राई इस्लाहात के जरिए पंजाब ने ज़राई तरक्की की एक नई सिमत मुतय्यन कर दी है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। ननकाना साहिब में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट मुलाजमीन में नई मोटरसाइकिल्स तकसीम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। पंजाब असम्बली के रुकन आगा अली हैदर खान ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर और दीगर ज़राई अफसरान के हमरा महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के 80 पैरा वटरनरी मुलाजमीन में नए मोटरसाइकिल्स की चाबियां तकसीम की, जिसका मकसद दही इलाकों में वटरनरी खिदमात की बर वक्त और तेज तरीन फराहमी को यकीनी बनाना है। बीमार जानवर को हॉस्पिटल तक लेके आने में जो जानवर को तकलीफ होती थी और उसके मालिक को जो परेशानी का सामना करना पड़ता था, उससे बड़ी हद तक उसका तदारक हो जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी में लाइफ स्टॉक का किरदार बहुत अहम है। लाइफ स्टॉक मुलाजमीन को मोटरसाइकिल्स की फराहमी से उन्हें फील्ड में काम करने में सहूलत होने के साथ साथ किसानों के जानवरों की बेहतर निगहदाश्त और किसी भी बीमारी की सूरत में बर वक्त तशखीस
और फौरी इलाज मुमकिन होगा। ना सिर्फ लाइव स्टॉक फार्मर्स को उनकी दहलीज पर वेटनरी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी, बल्कि जो हमारा पैरा वेटनरी स्टाफ और वेटनरी स्टाफ है उसकी इस्तादकारी में भी बेपनाह इजाफा होगा। वेटरनरी मुलाजमीन को नए मोटरसाइकिल की फराहमी इस बात का सबूत है कि पंजाब हुकूमत लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा से मयारी ड्रामों के लिए जाना जाता है। PTV इस्लामाबाद सेंटर से हालिया दिनों में नशर होने वाला नया ड्रामा मलकानी नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल कर रहा है। इसी ड्रामे के हवाले से मजीद बताएंगे शिराज अली डहरी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा से मयारी ड्रामों की पहचान रहा है। PTV के ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी बेहद मकबूल रहे हैं। खानदानी इक़दार, मुआशराती मसाइल और हकीकी जिंदगी पर मबनी सबक आमेज कहानियाँ, यही वो खुसूसियात हैं जिन्होंने PTV को हर दौर में सबसे मुनफरिद बनाया। माजी के क्लासिक ड्रामे वारिस, अंधेरा उजाला, मारवी, जंगल, दीवारें, हवाएं और चाकर आजम आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा हैं। उन्हीं सुनहरी रवायात को आगे बढ़ाते हुए इन दिनों PTV इस्लामाबाद सेंटर से पेश किया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल मलकानी नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ये ड्रामा अपनी जानदार कहानी, हकीकत के करीब किरदारों और देही जिंदगी के खूबसूरत पस मंजर के बायस मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क दोनों जगह ही बेहद पजीराई हासिल कर रहा है। इस कैरेक्टर को जो मलकानी का हमने दिखाया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन चूंकि इसको हम एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पे इस लड़की को लेकर आए हैं, तो इसमें अमर खान ने ये रोल प्ले किया है मलकानी का बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उसका। PTV की तरफ से ड्रामा आया है जिसके सारे अदाकारों ने बड़ी अच्छा काम किया और मुझे बहुत पसंद आई उनकी अदाकारी। फिर सोनिया जी का काम बहुत अच्छा था, उनकी मेहनत नजर आ रही थी, इसके लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम किसी अगले प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। इस ड्रामे को मारूफ राइटर शाज मलिक ने तहरीर किया है, जबकि हिदायतकारी के फराइज बासलाहियत डायरेक्टर सोनिया इरशाद ने अंजाम दिए हैं। मलकानी PTV के इस देरीना रवायत का तसलसल है जिसने हमेशा आला मयार, खूबसूरत कहानी और मुस्बत पैगाम के जरिए नाजरीन के दिल जीते हैं। ड्रामा सीरियल मलकानी की PTV पर व्यूअरशिप तेजी से बढ़ती जा रही है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हैदराबाद। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। LCC ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला किया गया। इजलास में PSL लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज़ की कामयाबी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनकी टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा गया। इस मौके पर चेयरमैन PCB का कहना था कि PSL रोड शोज़ की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी है। पूरी कोशिश है कि PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में PSL के रंग बिखर गए। PSL ट्रॉफी की टाइम्स स्क्वायर पर नुमाइश हुई। शदीद सर्दी के बावजूद फैंस की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर पहुंचाया गया। शान मसूद, सलमान लियाका, फहीम अशरफ, साइम अयूब, सऊद शकील, अबरार अहमद ट्रॉफी के हमरा टाइम्स स्क्वायर पर पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और CEO PSL सलमान नसीर भी तकरीब में शरीक हुए। फैंस ने खिलाड़ियों और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर लीं और खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अंडर 19 एशिया कप के 9वें मैच में पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दुबई में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। समीर मिन्हास और उस्मान खान ने इनिंग्स का आगाज किया तो उस्मान खान 21 रन बनाकर आउट हुए। अली हसन बलोच सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। समीर मिन्हास ने 44 रन बनाए। UAE के नसीम खान ने 2 और मोहम्मद बाजिल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इवेंट्स में कौमी अंडर 19 टीम ने अब तक 2 मैचेस खेले। पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से हराया, जबकि दूसरे मैच में भारत के हाथों 90 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। इवेंट के 10वें मैच में भारत और मलेशिया की अंडर 19 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।
एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से एडिलेड में शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। कप्तान पैट कमिंस की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। पैट कमिंस कमर की तकलीफ के बायस पहले 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल सके थे। नेथन लियोन भी टीम का हिस्सा होंगे। माइकल नेसर और ब्रैंडन डगट प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। उस्मान ख्वाजा पर्थ टेस्ट में कमर की तकलीफ का शिकार हुए थे, ताहम अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। बिग बैश लीग के दूसरे मैच में मेलबर्न रेनिगेड्स ने ब्रिस्बेन हीट को 14 रन से हरा दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। जिलोंग में खेले गए मैच में मेलबर्न रेनिगेड्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। टिम सेफर्ट ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 56 गेंदों पर 102 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 6 छक्के और 9 चौके शामिल थे। ओलिवर पियाक ने 57 रन बनाए। ब्रिस्बेन हीट के जैक वाइल्डमथ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ब्रिस्बेन हीट की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना सकी। ओपनर कॉलिन मनरो ने 32 गेंदों पर 55 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके लगाए। हुग वेबजैन ने नॉट आउट 38 रन स्कोर किए। जेमी पियर्सन ने 50 रन बनाए। मेलबर्न रेनिगेड्स की जानिब से विल सदरलैंड ने 3 विकेटें हासिल की। जेसन बेहरनडोफ और गुरिंदर सांधू ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। PTV न्यूज पर यहाँ वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस हमारे साथ रहेगा।